Hello students, today we will start with the another part of the morphology of flowering plants, that is called as flower. All of you know that the flower is the reproductive organ of the plant. It is meant for sexual reproduction. That's why it is called as reproductive organ of flowering plants or the angiosperms. Angiosperms are known as the flowering plants, and flowers are meant for sexual reproduction. So if you observe the structure of a flower, the stalk of the flower is known as pedicel, and here is the holes, the floral holes are arranged on the thalamus. Okay, so these are known as the stalk of the flower. This is known as the stalk of the flower, that is called pedicel, and the tip of the pedicel is swollen. The swollen tip of the pedicel is known as thalamus, and the lower part of all the parts of the flower are present over the thalamus. So this hole, the lower hole, is known as calyx, and its individual members are known as sepals, and this is known as corolla, and the individual members known as petals. So these two holes are known as accessory holes, because these two holes do not participate in the reproduction. They might help in the reproduction but do not participate. And this is stamen, or this is the male part of the flower known as androecium, and the individual members are known as stamens, and this is gynoecium. Our individual member is known as carpel or pistil. So this is the structure of the flower. So the flower is the reproductive organ of the plant. It is meant for sexual reproduction. So four kinds of holes: calyx, corolla, androecium and gynoecium. So four kinds of holes successively arranged, one above other. कैलिक्स के ऊपर करोला है, उसके ऊपर एंड्रोसियम, उसके ऊपर गाइनोसियम. If you observe a flower, it seems that all the four parts arise from a common point, but they are not actually arise from a common point. They are placed one above other. So that's why successively present. So four kinds, different kinds of holes are known as floral holes. We can write it floral holes or parts. The parts are arranged in the ring like structure, that's why it is called as floral holes. So four kinds or different kinds of floral holes arranged successively on thalamus, that is on thalamus, और known as receptacle. thalamus का another name है receptacle. और ये क्या है? What do you mean by the thalamus or receptacle? It is the swollen tip of the stalk of the flower. It is the swollen end of the stalk or pedicel. So swollen end of pedicel or stalk of the flower. पेडिसेल इज नोन एज स्टॉक. ये जो पेडिसेल है ना, ये स्टॉक है, इसका जो एंड है या टिप है, दैट इज बीइंग स्वेलन, दैट्स एंड द नेम इज थैलामस और रिसेप्टेकल. सो उस थैलामस के ऊपर ये चार पार्ट्स आर प्रेजेंट. दिस फोर होल्स और पार्ट्स आर प्रेजेंट in the ring like manner.
सो दीज आर द डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स और फ्लोरल होल्स, एंड वो जो 4 होल्स है क्या है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. सो द 4 होल्स आर कैलिक्स, जैसे कि डायग्राम में हम लिखा है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. ठीक है, ये आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. ओके, जो कैलिक्स एंड करोला है, दीज आर नोन एज द एक्सेसरी होल्स. Calyx and corolla, these two are accessory holes, directly do not take part in reproduction, so accessory holes. ठीक है, and the androsium and the gynoecium are reproductive parts or known as the reproductive holes. Androsium and gynoecium are known as the essential holes. So androsium is the male part of the flower and the gynoecium is the female part. Androsium male part and gynoecium female part, and these two are known as reproductive holes. Or essential holes. Okay. So here is an important point in some monocots. Monocot plant जो है ना, like example lily. So monocot plants में क्या होता है, ये कैलिक्स करोला डिस्टिंक्ट नहीं होता है. कैलिक्स करोला इज नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि कैलिक्स और करोला नहीं रहता है, उसके जगह में और एक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरियांथ. 2 स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उसके जगह में एक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरियांथ. ठीक है ना. इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलिक्स करोला नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरियांथ. कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट. सो कैलिक्स एंड करोला 2 पार्ट उसका नहीं रहेगा, इसका एक ही चीज, उसके बदले में एक ही पार्ट रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरियांथ. नॉट डिस्टिंक्ट, कॉल्ड एज पेरियांथ. वो होल जो है, दैट होल इज नोन एज पेरियांथ, एंड इसका जो इंडिविजुअल मेंबर्स है, दैट इज नोन एज टेपाल्स. जैसे आपका कैलिक्स का सेपल से, करोला का पेटल से, उसी तरह पेरियांथ का इंडिविजुअल जो मेंबर्स है, दैट दोज आर कॉल्ड एज टेपाल्स. ओके. अगर देखिए इस डायग्राम में, देखिए यहां पर इस फ्लावर में हमने क्या दिखाया है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, स्टामेन्स एंड कार्पेल्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, और प्लांट भी बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये इसको हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट. 2 सेक्सेस इन 1 प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोशियस. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो प्लांट का नाम होगा मोनोशियस. ठीक है. लेकिन कुछ प्लांट ऐसा है कि उसमें ओनली 1 टाइप ऑफ फ्लावर रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर.
सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, आइदर स्टामेन रहेगा या फिर कार्पेल रहेगा, कोई भी एक चीज रहेगा। अगर स्टामेन रहेगा, स्टामेन इज द मेल पार्ट, इट इज कॉल्ड मेल फ्लावर। और उसका उसी स्पेसीज का दूसरा प्लांट में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन जो स्पेसीज है उसका मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल हम देते हैं जैसे कि पपाया प्लांट, जो आप बोलते हैं पपीता। तो पपाया प्लांट में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। इसका मतलब मेल प्लांट में ओनली मेल फ्लावर्स है, उस फ्लावर में ओनली स्टामेन रहेगा, और फीमेल प्लांट में ओनली फीमेल फ्लावर्स है, उसमें ओनली कार्पेल रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप का प्लांट को हम क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, यानी कि एक प्लांट में बॉडी में दो सेक्स रहेगा, तो उस प्लांट को बोलेंगे मोनोसियस। फ्लावर को तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे, लेकिन प्लांट को बोलेंगे मोनोसियस। अगर अलग अलग सेम स्पेसीज का अलग अलग सेक्स होगा बॉडी में, यानी कि जैसे हमने पपीता का एग्जांपल दिया, पपाया का, उसमें मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, लेकिन प्लांट को हम बोलेंगे डायोसियस। When a plant has both androecium and gynoecium, मतलब स्टामेन एंड कार्पेल, कार्पेल का दूसरा नाम आप लिख लीजिए इधर, कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। When a plant has both androecium, यानी कि stamens, and gynoecium, यानी कि पिस्टिल, so called as bisexual flowers. Bisexual flowers. And plant with bisexual flowers are called मोनोसियस। तो प्लांट को बोलेंगे मोनोसियस। इफ ए फ्लावर हैज ओनली वन सेक्स, आइदर ओनली स्टामेन और ओनली कार्पेल्स, इफ ए फ्लावर हैज ओनली स्टामेन्स, a flower having either only androecium part, मतलब stamens, or only carpels or pistils, then called unisexual flowers. Unisexual flowers. सो इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दो टाइप का है। क्या है, आइदर मेल ओनली स्टामेन होगा या फिर ओनली कार्पेल होगा। अगर ओनली स्टामेन रहेगा तो मेल फुल होगा, तो उसको बोलेंगे स्टामिनेट, स्टामिनेट फ्लावर्स, यानी कि ये है मेल, इज कॉल्ड मेल फ्लावर्स। अगर ओनली पिस्टिल रहेगा या कार्पेल रहेगा ओनली, दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर्स, यानी कि फीमेल फ्लावर्स। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर टू काइंड्स, आइदर स्टामिनेट फ्लावर्स और पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो इसका मतलब द प्लांट्स हैविंग द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर known as dioecious plants, क्योंकि उसमें दो बॉडी होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड dioecious plants.
So plants with only unisexual flowers of one sex, either staminate or pistillate, then called as dioecious plants. Called as dioecious plants. ओके देखिए, अगर एक प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ बोथ सेक्स होगा, देन दैट इज मोनोसियस. प्लांट्स विथ unisexual flowers of both sexes, that is called monoecious. बाइसेक्सुअल होगा तो मोनोसियस, और यूनिसेक्सुअल का बोथ सेक्स होगा तो भी मोनोसियस. देख लीजिए, सपोज एक प्लांट है, इसमें ये सब फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट, मेल फीमेल, मेल फीमेल. ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. एक प्लांट में एक फुल मेल होगा तो दूसरा फुल फीमेल हो सकता है, मेल और ये फीमेल. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मेल बॉडी पूरा अलग होगा, जैसे कि पपीता का हमने एग्जांपल दिए थे, एंड फीमेल बॉडी पूरा अलग होगा. तो ये मेल बॉडी है, ओनली मेल फ्लावर्स, ये फीमेल बॉडी है, ओनली फीमेल फ्लावर्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ये सब है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इनमें दो सेक्स है, तो प्लांट इज कॉल्ड मोनोसियस. मोनोसियस विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, और यहां पर भी मोनोसियस है, क्योंकि यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन प्लांट में तो दो सेक्स है ना. फूल के हिसाब से सिंगल सेक्स है, लेकिन प्लांट के बॉडी में दो सेक्स है. सो ये मोनोसियस विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ बोथ सेक्सेस, जो हमने यहां पर लिखे हैं, प्लांट्स विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ बोथ सेक्सेस, मोनोसियस. तो ये भी मोनोसियस है. विथ both types of unisexual flowers. both types of unisexual flowers. लेकिन यहां पर देखिए, मेल बॉडी पूरी तरह से अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, तो इसको हम बोलेंगे डायोसियस प्लांट. So in dioecious plant, male plant is separate and the female plant is separate. देखिए यहां पर फ्लावरिंग, ऑल ऑफ यू नो दैट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट. जो लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, सूट मॉडिफाई होके इवोल्यूशन के समय में फ्लावर बना है. तो सूट में नोड इंटरनोड होगा, तो यहां पर भी देखिए, ये नोड है, ये नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी नोड है. तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो नोड रीजन में सेपाल है, ये सेपाल, पेटाल, स्टामेन, ये सब लीव्स है, फ्लोरल लीव्स है, यानी कि ये मॉडिफाइड लीव्स है. तो यहां पर नोड जो है ना, नोड एंड द इंटरनोड हैज बीन कंप्रेस्ड, इंटरनोड काफी छोटा हो गया है. तो जैसे कि आप अगर एक फूल को देखेंगे तो आपको जैसे मालूम चलेगा कि सारे फ्लोरल पार्ट्स एक ही जगह से निकले, लेकिन एक के ऊपर दूसरा है, लेकिन इतना
उसका इंटरनोड इतना कम हो गया है कि वो मालूम नहीं चलता, जैसे कि मालूम चलता है कि एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुआ है, ड्यू टू वेरी शॉर्टर इंटरनोड और कंप्रेस्ड और रिड्यूस इंटरनोड काफी कम हो गया है। लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स है जो कि इंटरनोड एलोंगेटेड है, यानी सेपल यहां होगा तो कार्पेल ऊपर होगा, यानी इंटरनोड बिटवीन इंटरनोड, ये सब इंटरनोड है। फ्लोरल पार्ट्स के बीच में जो सब स्पेस है दैट इज इंटरनोड। सेपल पेटल के बीच में, सेपल और पेटल के बीच में जो जगह है इंटरनोड, लेकिन ये कंप्रेस है। आमतौर जनरली हर फ्लावर में कंप्रेस होता है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे है जो कि दिस इंटरनोड इज विजिबल। तो ये एक्चुअली प्रूफ है, दिस इज एविडेंस दैट फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। ओके, सो इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या है अब देख लीजिए। सो ये एनसीईआरटी में नहीं है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सो जनरली इन मोस्ट फ्लावर्स internode are not visible, लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स है, फ्लावर है जिसमें कि इंटरनोड्स विजिबल होता है। इफ एलोंगेटेड इंटरनोड प्रेजेंट, सो इंटरनोड एलोंगेट होता है। सेपल एंड पेटल के बीच में ये इंटरनोड, बाकी सब इंटरनोड एलोंगेट नहीं होगा, ओनली अगर ये इंटरनोड एलोंगेट होगा then it is known as anthophore. So elongated मतलब visible होगा, elongate होगा तो visible होगा। elongated internode between sepal and petal, that is called as anthophore. This is the terminology that is used for elongated internode between sepal and petal. और पेटल एंड स्टामेन, ये पेटल स्टामेन के बीच में ये इंटरनोड अगर एलोंगेट होगा देन उसको हम क्या बोलेंगे? तो एलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन पेटल एंड एंड्रोशियम नोन एज एंड्रोफोर। between पेटल एंड स्टामेन मतलब करोला एंड एंड्रोशियम के बीच में, पेटल एंड स्टामेन, देन इट इज नोन एज एंड्रोफोर। ठीक है, अगर स्टामेन और कार्पेल के बीच में या एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बीच में अगर एक्सटेंड होगा इंटरनोड, एलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, then is known as androgynophore. Androgynophore or gynandrophore. Gynandrophore. Androgynophore or gynandrophore. सभी यहां पर इज कॉल्ड गाइनोफोर, जिस कॉल्ड गाइनोफोर।
अगर एक फ्लावर में ओनली पेटल एंड स्टैमेन के बीच में ओनली दिस स्पेस इज अवेलेबल, दिस स्पेस इज विजिबल और एक्सटेंडेड एंड्रोफोर, अगर इसके बीच में जो अगर स्पेस अगर विजिबल होगा दैट इज गाइनोफोर। अगर दोनों विजिबल होगा, एक फ्लावर में एंड्रोफोर गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट होगा, if both are present in a flower, both are present in same flower, then known as androgynophore or gynandrophore. Androgynophore or known as gynandrophore. अगर एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर बोथ आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर, अगर ओनली एंड्रोफोर और ओनली ये एलोंगेटेड इंटरनोड एक फ्लावर में है तो ओनली एंड्रोफोर बोलेंगे, और एलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन एंड्रोसोम गाइनोसोम एक फ्लावर में है तो गाइनोफोर। अगर दोनों चीज एक फ्लावर में होगा तो उसको हम बोलेंगे एंड्रोगाइनोफोर और गाइनैंड्रोफोर। ओके, तो सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, नाउ विल गो टू सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। जिसे आपने एनिमल में स्टडी किए हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, तो उसी टाइप का फ्लावर में भी सिमेट्री डिफरेंट टाइप का है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, एक है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, that means flower with radial symmetry, यानी कि आप फ्लावर को किसी भी प्लेन में अगर कट करेंगे टू इक्वल हाफ्स विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स। इसका मतलब क्या है? सो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स। दो इक्वल रेडियल हाफ्स में फ्लावर डिवाइड होंगे into two equal radial halves in any radial plane passing through the center by any radial plane, and that plane must be passing through the center, any radial plane passing through the center. सेंटर के थ्रू में कोई भी प्लेन में हम उसको कट करेंगे फ्लावर को, तो फ्लावर दो इक्वल हाफ्स अगर होगा देन दैट फ्लावर इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, फ्लावर विथ रेडियल सिमेट्री। जैसे एग्जांपल है मस्टर्ड, दातुरा, चिल्ली। एग्जांपल है मस्टर्ड, दातुरा, चिल्ली। मस्टर्ड इज अंदर ब्रासिकासी फैमिली, ब्रासिकासी इसको हम बोल सकते हैं क्रूसीफेरी, और दातुरान चिल्ली इज अंडर सोलानासी फैमिली, इट इज अंडर सोलानासी फैमिली। So this is called actinomorphic flower. Another one is zygomorphic flower, जिसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री।
जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब है विथ बाइलैटरल सिमेट्री। अगर बाइलैटरल सिमेट्री होगा देन उस फ्लावर को हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। So flower can be divided into two equal halves by only one plane. Flower is divided into two equal halves, but two similar halves, only in one particular vertical plane. Only by one particular वर्टिकल प्लेन। और एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में हम डिवाइड करेंगे फ्लावर को और दो सिमिलर हाफ्स होगा, ओके, इट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे एग्जांपल है पी, बीन, गुलमोहर, कैसिया, ये सब एग्जाम्पल है। सो पी बीन है, ये आपका कोर्स में है फैबासी फैमिली, और गुलमोहर कैसे आपका कोर्स में नहीं है, फिर भी जान लीजिए सीजल्पिनी फैमिली। एंड बोथ आर अंडर द मेन फैमिली का नाम क्या है? फैबासी एक फैमिली है, सीजल्पिनी एक फैमिली है, लेकिन दोनों सब फैमिली जैसा है, और वो मेन फैमिली है लेगुमिनोसी। लेगुमिनोसी फैमिली का दो सब फैमिली है, फैबासी एंड सीजल्पिनी। सो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अगर फ्लावर इरेगुलर है देन इट इज नोन एज एसिमेट्रिक फ्लावर, मतलब इरेगुलर फ्लावर। इसका मतलब है इरेगुलर। इट कैनॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, ठीक है। इट कैनॉट बी, फ्लावर कैनॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन। Flower cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through center, by any vertical plane. Passing through center. So example is कान्ना। एक प्लांट है जो कि इरेगुलर है, एसिमेट्रिकल फ्लावर है। इसमें कान्ना प्लांट में एसिमेट्रिकल फ्लावर है। आप इसको किसी भी प्लेन में कट कर लीजिए पासिंग थ्रू सेंटर, इट विल नॉट गिव द टू इक्वल हाफ्स, टू सिमिलर हाफ्स। So far we have studied the different types of symmetry in a flower. Now we give some terminology about the flower. So the flowers can be called as complete flower or incomplete flower.
So when all the floral holes are present, when all 4 floral holes are present, then called complete flower. इसका मतलब है एक फ्लावर में अगर 4 floral hole, all the floral holes, that means calyx, corolla, androecium, gynoecium, all are present, then it is called complete flower. If anyone is absent, then it is called as incomplete flower. If any floral part का होल is absent, कोई भी एक absent क्यों ना हो, it is called incomplete flower. तो 4 floral होल में से अगर कोई भी floral होल absent अगर हो जाएगा, then it is called as incomplete flower. So आपको मालूम है अभी हम बताए थे कि पेरियांथ प्रेजेंट इन मोनोकोट प्लांट, मोस्ट मोनोकोट, लिली का एग्जांपल देते हैं जस्ट कुछ समय पहले कि वहां पर कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएट नहीं है. कैलिक्स कोरोला 2 स्ट्रक्चर की जगह एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, उसका नाम है पेरियांथ, जिसका इंडिविजुअल मेंबर्स है टेपल्स. तो उस केस में कैलिक्स कोरोला 2 नहीं रहेगा, पेरियांथ रहेगा. इसका मतलब वहां पर पेरियांथ, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रहेगा. सो the flower with perianth is also incomplete flower. Flower with perianth, उसमें कैलिक्स एंड करोला एब्सेंट होता है. और एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी इनकम्प्लीट फ्लावर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, एक ही सेक्स है. कैलिक्स कोरोला तो रहेगा, लेकिन एंड्रोसियम गाइनोसियम दो की जगह एक ही रहेगा, आइदर एंड्रोसियम रहेगा या फिर गाइनोसियम रहेगा. तो इसका मतलब 3 floral holes will be present. So यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर वो स्टामिनेट हो यानी कि मेल फ्लावर हो या पिस्टिलेट हो. इस कंडीशन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आल्सो इनकम्प्लीट फ्लावर्स. आपका एनसीईआरटी बुक के 72 नंबर पेज के लास्ट पैराग्राफ में दिया है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर. सपोज मान लीजिए कि कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर है सेपल्स, यानी कि जो फ्लोरल होल है एक सेपल इधर है, एक सेपल इधर है, एक सेपल इधर है, एक सेपल इधर है, तो टोटल होल इज नोन एज कैलिक्स. उसके बाद उसके ऊपर में करोला है, जो पेटल्स है, जो फूल की जो पंखड़ी होती है, इसको उड़िया में बोलते हैं पाखुड़ा, फूलों पाखुड़ा. तो फूल की जो पंखड़ी होती है वो एक एक करके होती है. तब मतलब you can see the China rose flower, that is 5 petals. तो वो पंखड़ी जो है पेटल्स एक के बगल में दूसरा रहता है, दूसरा बगल में तीसरा रहता है, तो वो एक रिंग टाइप का है. तो दैट इज अ होल. सो मोनोकोट प्लांट में ट्राइमेरस कंडीशन दिखाया गया है. In monocot flowers, trimerous condition found, or we can call it as in monocot plants trimerous flower is found. Trimerous condition बोल सकते हैं, trimerous flower बोल सकते हैं. So trimerous condition क्या होता है? Suppose मान लीजिए ये थैलामस है, इसमें सेपल हमेशा 3 रहेगा, सेपल 3,
और पेटल भी 3 रहेगा, पेटल भी 3 रहेगा। तो हर पार्ट का 3 पार्ट रहेगा। एंड्रोसियम भी 3 रहेगा। हर फ्लोरल होल का 3 मेंबर्स होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइमेरस। गाइनोसियम भी 3 रहेगा। तो अगर हर फ्लोरल पार्ट का ट्राइमेरस 3 पार्ट होता है, हर फ्लोरल पार्ट का 3 मेंबर्स रहता है, then it is called as trimerous। अगर हर फ्लोरल पार्ट का 4 मेंबर है, सेपल 4, पेटल 4 रहेगा तो टेट्रामेरस, और हर फ्लोरल पार्ट का अगर 5 रहेगा तो पेंटामेरस। So trimerous condition is found in monocots, and tetramerous and pentamerous condition is found in dicots। इसका मतलब क्या है? ट्राइमेरस कंडीशन का मतलब क्या है? When floral members or floral appendages, you can call it as, जो आपका एनसेट में लिखा है बुक में, where floral appendages are in 3 numbers or multiple of, यानी 3 रह सकता है या 6 रह सकता है या 9 रह सकता है, 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होगा, then is called as trimerous condition। ये मोनोकॉट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। In dicot plants, in dicot flowers, 2 conditions are there: tetramerous and pentamerous condition। Tetramerous and pentamerous condition। So if you look for the example, you can go to थोड़ा एडवांस पेज में जाइए, फैमिली वाला पेज में 81 नंबर पेज में लिलियासी फैमिली दिया है। लिलियासी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम देखिए। उस फ्लोरल डायग्राम में 6 नंबर्स ऑफ पेटल्स दिया है, 3 आउटर होल में, 3 इनर होल में। तो लिलियासी फैमिली एक मोनोकॉट फैमिली, ठीक है। और 80 नंबर पेज में देखिए सोलानासी फैमिली का, देखिए उधर दिया है 5 नंबर्स ऑफ सेपल्स, 5 नंबर्स ऑफ पेटल्स इन द फ्लोरल डायग्राम। तो आउटर होल है फ्लोरल डायग्राम में, जो एफ में दिया है, फ्लोरल डायग्राम इज इन द एफ। तो वहां पर एफ नंबर जो डायग्राम है, तो वहां पर आउटर जो होल है, सो दैट आउटर होल इज द सेपल। वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावर, जिसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। आउटर होल इज सेपल्स and inner hool is petal। So वहां पर 5 नंबर्स है और स्टामेन भी 5 है, ठीक है। So trimerous condition मतलब तो फ्लोरल appendages in 5 or multiple of 4 or multiple of 4 in 4 or multiple of 4। 4 संख्या में रहेगा, 4 नंबर्स में रहेगा, या मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा। यहाँ पर फ्लोरल appendages है 5 और मल्टीपल ऑफ 5। The trimerous and the pentamerous condition that is found in dicot flowers, ठीक है। तो फ्लावर्स में एक चीज होता है ब्रैक्ट का। सो ब्रैक्ट कहां पर होगा? आप 72 नंबर पेज में लास्ट लाइन 2-3 लाइंस देखिए। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट एंड रिड्यूस्ड लीव्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। तो देखिए ब्रैक्ट क्या है? रिड्यूस्ड लीफ। ये एक्चुअली एक ही ब्रैक्ट नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। सो ब्रैक्ट्स होते हैं रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसेल। पेडिसेल मतलब स्टॉक ऑफ द फ्लावर। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द पेडिसेल। सो बेस ऑफ द पेडिसेल में ब्रैक्ट रहता है। समझ लीजिए ये डाली है,
और यहाँ पर फ्लावर, ये जो पेडिसल है, ये स्टॉक है, इसका यहाँ पर जैसे ब्रैक्ट रहेगा। These are called as bracts. If bract is present, तो bract क्या है? आप समझ गए, bract is a reduced leaf at the base of the pedicel. अगर bract रहेगा तो फ्लावर को हम बोलेंगे bracteate. अगर bract नहीं रहेगा तो फ्लावर को बोलेंगे bracteate. If bract is present, then flower is called bracteate. If not present, bract is not present, then flower is called bracteate. फ्लावर को बोलेंगे, ब्रैक्ट को नहीं बोलेंगे। ब्रैक्ट अगर नहीं रहेगा तो उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे, अगर ब्रैक्ट रहेगा तो फ्लावर को ब्रैक्टिएट बोलेंगे। उसके बाद different types of flower based on the position of ovary. You can follow the page number 73. So, on the basis of position of ovary. तो थैलामस के ऊपर कैलिस, करोला, स्टैमेन है, और जो कार्पेल की पार्ट है, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो ओवरी विद रेस्पेक्ट टू द अदर फ्लावर पार्ट्स क्या पोजीशन है, उसको लेके फ्लावर्स तीन टाइप है, दैट इज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। क्लियरली एनसीईआरटी में क्या है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ position of calyx, corolla and androecium, on the basis of position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary. With respect to ovary on thalamus, with respect to ovary on thalamus. तो थैलामस के ऊपर सब देख लीजिएगा, ये थैलामस है। सपोज यहाँ पर ये ओवरी, इसी ओवरी, और कैलिक्स ये है, करोला ये है, ये स्टैमेन। इसका मतलब क्या है, ओवरी सबसे बाकी तीनों पर नीचे है, ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, तो दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी एंड द फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। ठीक है, ये एग्जांपल है, हम डिस्कशन करेंगे। तो पोजीशन ऑफ कैलिस, करोला एंड अंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम थैलामस, इसके रेस्पेक्ट में तो फ्लावर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फ्लावर्स divided into three parts. One is the hypogynous. ये जो डायग्राम में क्या हो, ये hypogynous flower. Then is perigynous flower. यहाँ पर कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, you can directly follow from the initiative book, page number 73. perigynous. उसके बाद है एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, सो यहाँ पर हाइपोगाइनस में गाइनोसियम मतलब ओवरी,
आपको मालूम है गाइनोसोम का पिस्टिल, इसलिए स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल and this ovary. We can call it gynosium is the highest position. That means ovary is also highest position. Okay, follow the NCERT lines. Gynosium occupies the highest position. Other parts situated below it. Ovary is called superior. Gynosium. Gynosium मतलब ovary. Gynosium or ovary. Okay. Ovary occupies the highest position. Occupies the highest position. And other floral parts present below it. Other floral parts present below it. Okay, other floral parts present below it. The ovary is called, ovary is called superior. Flower is called hypogynous and the ovary is called, if ovary is superior, then if ovary is superior, then flower is called hypogynous. Ovary is called superior. तो एग्जाम्पल क्या है इसमें, तो जस्ट यू फॉलो द इंसेक्ट एग्जाम्पल. मस्टर्ड है, मस्टर्ड जो सरसों होता है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका. मस्टर्ड है, ठीक है. और चाइना रोज है, ब्रिंजल. चाइना रोज यू नो दैट हिबिस्कस, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. So you can follow the diagram of NCERT. That is on page number 73, figure 5.13, diagram number A. So first diagram. ठीक है. ये है पेरिगैइनस और ये है हाइपोगाइनस डायग्राम. दिस इज द हाइपो. पेरिगैइनस में क्या है, यहाँ पर जो थैलामस है वो कफ शेप हो जाता है. And gynous is situated in the center. And other parts of the flower located on the rim of the thalamus. आप इधर देख लीजिएगा. B and C नंबर डायग्राम, दोनों डायग्राम पेरिगैइनस का दिया है उसी पेज में NCERT का. यहाँ पर आप देखिए जो थैलामस है वो कफ शेप का हो जाता है, जैसे कफ शेप हो जाता है. तो यहाँ पर ओवरी है, बाकी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, ये सब ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ द ओवरी. यहाँ पर ना ओवरी पूरा ऊपर है ना पूरा नीचे, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं पेरिगैइनस. अगर ओवरी पूरा ऊपर हो जाएगा बाकी फ्लोरल होल से तो हाइपोगैइनस. ओवरी अगर उसी के लेवल में रहेगा तो पेरिगैइनस. ओवरी अगर नीचे हो जाएगा जो कि डी नंबर डायग्राम में है इनसाइड, ओवरी नीचे रहेगा तो एपिगैइनस. सो पेरिगैइनस के लिखिए नोट. तो क्या है पेरिगैइनस? Gynosium situated in the center and other flower parts. Gynosium situated at the center. NCERT लाइन है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द NCERT पॉइंट्स. Gynosium situated at the center and other floral parts located on the rim of thalamus. ये रिम है, ये जो पार्ट ना ये रिम है, ये रिम के ऊपर है तो इसके लेवल में आ जाता है. And other floral parts situated on the rim of thalamus, almost at same level. On rim of thalamus, almost at same level. इस लेवल में ओवरी है, ये गाइनोसियम है. यहाँ गाइनोसियम मतलब ओवरी, यहाँ आप लिख सकते हैं ओवरी.
यह गाइनोस्ट्रम का मतलब ओवरी को ही इंडिकेट कर रहा है, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, ठीक है। तो ओवरी जिस लेवल में है बाकी सब फ्लोरल पार्ट्स भी उसी लेवल में है। तो यहाँ पर ओवरी को बोलते हैं पेरिगाइनस। ओवरी इज कॉल्ड पेरिगाइनस। यहाँ पर ओवरी इज नॉट कॉल्ड पेरिगाइनस, ओवरी इज यहाँ पर ओवरी का सुपीरियर, यहाँ पर फ्लावर इज कॉल्ड पेरिगाइनस and ovary is called half inferior. Ovary, so flower is called perigynous, ovary is called half inferior. ना वो पूरा सुपीरियर है ना वो इंफीरियर। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं ये हाफ सुपीरियर क्यों नहीं बोलेंगे? या ये सुपीरियर है, इसमें सुपीरियर होगा, इसमें इंफीरियर होगा, ओवरी पूरा नीचे होगा, लेकिन यहाँ पर बीच में है ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है, तो इसको हाफ सुपीरियर भी हम बोल सकते हैं ना? नहीं, इसका नाम एक्चुअली दिया गया है हाफ इंफीरियर। जो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है पहले से उसी को हम यूज करेंगे, दूसरा टर्मिनोलॉजी अपने आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये है हाफ इंफीरियर, इट इज कॉल्ड एज हाफ इंफीरियर एंड द फ्लावर इज कॉल्ड पेरिगाइनस। और यहाँ पर एग्जांपल है प्लम, रोज, पीच, तीनों एग्जांपल you just follow in and set examples. Here no extra examples are required. Plum, rose and peach. Okay. और ये जो इंसेक्टिव डायग्राम है पेरिगाइनस का वो बी एंड सी नंबर दिया है। लास्ट नंबर आप देखिएगा डी नंबर में, डी नंबर एपिगाइनस का डायग्राम दिया है। डी नंबर यहाँ पर क्या है? थैलामस कंप्लीटली एनक्लोज कर दिया ओवरी को, ओवरी पूरा नीचे आ गया, थैलामस उसके चारों तरफ सराउंड हो गया, ठीक है ना। मार्जिन ऑफ थैलामस ग्रोज अपवर्ड, मार्जिन ऑफ थैलामस ग्रोज अपवर्ड, उसका जो मार्जिन था ना वो ऊपर की तरफ ग्रो हो गया, कंप्लीटली एनक्लोज कर लिया ओवरी को, grows upward enclosing the ovary completely. Enclosing the ovary completely, completely ये ovary को enclose कर दिया, ठीक है, and getting fused with, and ovary को enclose not only enclose किया, उसके साथ मिल गया, fuse हो गया, and fuse with it. Enclosing the ovary completely and fuse with it. तो यहाँ पर ओवरी पूरा नीचे आ गया और बाकी सब जो फ्लोरल पार्ट है वो ओवरी के ऊपर से निकले। Other floral parts arise above the ovary and other floral parts arise present above the ovary. Other floral parts arise above the ovary or present above the ovary. The ovary is called here inferior. Ovary is called inferior. Ovary is called inferior. Okay. The ovary is inferior and the flower is called epigynous. तो डायग्राम आप अच्छी तरह से मार्क कीजिएगा। ये देखिए ये ओवरी में ये जो थैलामस है, थैलामस एक्चुअली ये कंप्लीटली सराउंड हो गया है। थैलामस कंप्लीटली थैलामस एनक्लोज कर लिया है। इस थैलामस कंप्लीटली एनक्लोज्ड हो गया। थैलामस के जो दो साइड है ना वो एनसर्कल हो गया और ओवरी कंप्लीटली अपने अंदर ले लिया। और बाकी जो सब फ्लोरल पार्ट है, ये कैलिक्स, ये करोला, ये एंड्रोसियम, ये सब ओवरी के ऊपर से निकले। That's right. The ovary is inferior here. The ovary is inferior
मतलब फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर, गुआवा मतलब अमृत, तार ओडिया कहूछु पिजुली, गुआवा अरे गुआवा मतलब अमृत, इसका साइंटिफिक नेम है सीडियम। और एक कुकुम्बर है, कुकुमिस, उसका साइंटिफिक नेम है कुकुमिस, कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम है कुकुमिस, गुआवा का साइंटिफिक नेम है सीडियम। कुकुम्बर और एक एग्जांपल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, और एग्जांपल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। आपने प्रीवियस क्लास में इन्फ्लोरेसेंस स्टडी किए हैं, कंपोजिटिव इन्फ्लोरेसेंस, सॉरी दैट इज कॉल्ड कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस, और उसको हेड इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उसमें सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर है, उसमें दो फ्लोरेट होता है, एक रे फ्लोरेट और दूसरा डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट है उसमें ओवरी इंफेरियर, so that flower is called epigalmus।